Hi everyone, welcome to my channel. So in today's video we are going to discuss the electric dipole. What is an electric dipole and how to calculate the electric field due to an electric dipole. Okay. So basically electric dipole consists of 2 point charges. Okay. Point charges, that means their size is very small. Okay. So they will have charge of same magnitude but opposite sign. So both magnitude is same q but sign is opposite, plus q and minus q, and the charges are separated by a small distance. Okay, so the condition for an electric dipole is it must have 2 point charges. 2 point charges, they will have equal magnitude, opposite sign, and separated by small distance. Small distance. Okay, so that is the condition for a dipole. ठीक है, चार्ज जो होंगे वो पॉइंट चार्ज होंगे, दैट मीन्स उनका चार्ज का जो साइज है वो बहुत छोटा होगा. ठीक है, देन इक्वल मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल. दिस इज q, दिस इज माइनस q. ऑपोजिट साइन मतलब वन चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज, अदर चार्ज इज नेगेटिव चार्ज, एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. Okay, so this is the dipole. Now suppose this is location A, this is location B, and this is the center of the dipole. C is the midpoint of the dipole. So this point is called the center of dipole. Okay. Now the line which is passing through the axis of the dipole, this line is passing through the axis of the dipole. ठीक है, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सियल लाइन. एक्सियल लाइन क्या होता है? एक्सियल लाइन इज द लाइन which passes through the axis of the dipole. Okay, and if I draw a perpendicular bisector to the dipole, so obviously it will pass through C because C is the midpoint. See, this is the perpendicular bisector. तो ये जो perpendicular bisector है, this is called the equatorial line. Okay, so perpendicular bisector is the equatorial line, and line passing through the axis of the dipole is called the axial line. Okay, and this is the center of the dipole. Okay, so this is how to identify the dipole and the various locations. Okay, so now we are going to calculate the electric field along the axial line and along the equatorial line. Okay, now before that we need to define one term called electric dipole moment. Okay, electric dipole moment denoted by the symbol P. It is a vector quantity. ठीक है, now how it is defined? Electric dipole moment P, it is the product of either charge constituting the dipole, that is you need to take one of the charge, magnitude of one of the charge constituting the dipole. ये डाइपोल में, इस डाइपोल में दो चार्ज है. ठीक है, q और माइनस q. तो आपको एक चार्ज लेना है, उसका मैग्नीट्यूड लेना है. मतलब अगर 2q माइनस 2q होगा तो यहाँ पे आपको क्या लेना है? 2q लेना है. So this electric dipole moment, it is the product of either charge constituting the dipole and the length of the dipole. So as you can see, this length of the dipole, it is a vector quantity. Now how do you measure the length? Because it is a vector quantity, that means it must have a direction. So this length is always measured from negative charge to positive charge. This is the convention. Okay, so length of the dipole, it is measured from negative charge to positive charge. Now P is equal to Q times twice A. So अगर P equal to Q into twice A है तो P और twice A तो सेम डायरेक्शन में होगा. So length of the dipole का डायरेक्शन क्या है? Length of the dipole का डायरेक्शन है from negative charge to positive charge. So that means electric dipole moment जो P है उसका डायरेक्शन क्या होगा? वो भी तो इसी डायरेक्शन में होगा, लेंथ ऑफ द डाइपोल. सो दैट मींस
जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. ओके, सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड. ओके, सो नाउ वी नो द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड वी नो द डाइपोल, द वेरियस लोकेशन. ओके, बिकॉज why I have defined this electric dipole moment, because it is much easier to express the expression for electric field or torque that we are going to calculate later using the term electric dipole moment. Okay, the expression becomes much presentable. Similarly, instead of twice a, the length of the dipole I have taken it as twice a. ठीक है, twice a लिया है, a तो नहीं लिया है, या x y नहीं लिया है, twice a क्यों लिया है? तो twice a में लेते हैं लेंथ ऑफ द डाइपोल, तो मतलब जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा मतलब प्रेजेंटेबल होता है, और कोई बात नहीं है. ठीक है, तो दिस इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल एंड दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. अब नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक डाइपोल है. ठीक है, दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज. तो डाइपोल में दो चार्ज होंगे, पॉइंट चार्ज होंगे, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. तो ये जो डिस्टेंस है बहुत पास में है, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए हम लोग इसको थोड़ा दूर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा, फिर ये हो गया एक्सियल लाइन. एक्सियल लाइन मतलब क्या है? एक्सियल लाइन जो बोला है जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मतलब एक्सियल लाइन इज द लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल. ठीक है, एक्सियल लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल. तो यहाँ पे कोई एक लोकेशन है जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. ठीक है, सो दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज लोकेशन ए, दिस इज लोकेशन बी. ये हो गया सेंटर ऑफ द डाइपोल. ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये ओ पॉइंट है. ठीक है, तो लेंथ ऑफ द डाइपोल तो ट्वाइस ही हो गया, और जो ओ पॉइंट है इसका डिस्टेंस फ्रॉम सी उसको लेते हैं आर. ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू डाइपोल. अब डाइपोल में दो चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, तो हम लोग को दो चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक्चुअली. ठीक है, तो वी विल यूज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. मतलब क्या है कि हम लोग एक एक चार्ज के लिए अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और फिर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. अब नेगेटिव चार्ज के लिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा टुवर्ड्स द चार्ज होता है. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये टुवर्ड्स द चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा. तो वो ये हो गया ई, ई माइनस क्यू लिखता हूँ. ई माइनस क्यू लिखा है मतलब क्या, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके लिए है? इस चार्ज के लिए. ठीक है, अच्छा, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अवे होता है. तो इस पॉइंट में इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? इस डायरेक्शन होगा. सो दिस इज ई प्लस क्यू. ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैंने जो ये वेक्टर ड्रॉ किया है, जो एरो ड्रॉ किया है, इसका लेंथ छोटा है, इसका लेंथ बड़ा है. क्यों? क्योंकि वेक्टर का जो लेंथ होता है दैट इज द मैग्नीट्यूड. ठीक है, ये चार्ज पास में है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये चार्ज दूर में है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा. इसलिए मैंने इसका लेंथ छोटा किया है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा. ठीक है, अच्छा, नाउ तो E प्लस क्यू इस डायरेक्शन में, E माइनस क्यू इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो रिजल्टेंट फील्ड होगा, अगर रिजल्टेंट फील्ड मान लेते हैं E, सपोज नेट फील्ड एट O, सो E इज इक्वल टू क्या होगा? E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू. इन दोनों का डिफरेंस होगा बिकॉज द टू फील्ड्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो रिजल्टेंट क्या होगा? उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, अच्छा, अब E प्लस क्यू का वैल्यू कितना होगा? E प्लस क्यू जो है वो है के क्यू डिवाइड बाई प्लस क्यू, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस. अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? R. ये क्या है? A. तो ये क्या होगा? R माइनस A. ठीक है, सो दिस इज के क्यू डिवाइड बाई R माइनस A स्क्वायर. ठीक है, सिमिलरली E माइनस क्यू क्या होगा? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, नेगेटिव चार्ज. तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? R. यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? A. ये पूरा ट्वाइस A था, तो ये A होगा, ये भी A होगा. तो ये क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? R प्लस A. ठीक है, सो दिस इज के क्यू डिवाइड बाई R प्लस A स्क्वायर. ठीक है, तो अगर ये वैल्यूज यहां पे अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो E इक्वल टू कितना आता है? E इक्वल टू के क्यू 1 बाई R माइनस A स्क्वायर माइनस 1 बाई R प्लस A स्क्वायर. ठीक है, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा? E इज इक्वल टू के क्यू 4RA डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर द होल स्क्वायर. ठीक है, अच्छा, इसको आप लिख सकते हैं के क्यू ट्वाइस A ट्वाइस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर द होल स्क्वायर. ठीक है, मतलब ये 4RA को मैंने ब्रेक कर दिया ट्वाइस A ट्वाइस R. अब मैंने क्यों ब्रेक किया
क्योंकि ये जो क्वांटिटी है Q इंटू ट्वाइस ए, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है P। तो इसका मतलब E को क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, K P ट्वाइस R डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर द होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। ये फाइनल एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो डाइपोल है, डाइपोल का जो लेंथ होता है वो तो बहुत छोटा होता है। ठीक है, सो दैट मीन्स जो A है वो R से बहुत छोटा है। ठीक है, तो मतलब R A से बहुत बड़ा है। तो R अगर A से बहुत बड़ा है तो इसका मतलब R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होगा, R स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, R स्क्वायर, उसका स्क्वायर मतलब क्या, R पावर 4। तो इसका मतलब E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू K P ट्वाइस R डिवाइड बाई R पावर 4। सो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2K P डिवाइड बाई R क्यूब। ठीक है, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस P बाई R क्यूब। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सियल लाइन फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अच्छा अब यहां पे एक चीज देखिए, जो रिजल्टेंट फील्ड है उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा। यहां पे देखिए ये जो E प्लस क्यू है इस तरफ था, अवे फ्रॉम द डाइपोल। ठीक है, E माइनस क्यू टुवर्ड्स द डाइपोल, बट कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, E प्लस क्यू बड़ा था। ठीक है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन तो यही होगा, रिजल्टेंट फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। ओके, now what is the direction of electric dipole moment? It is always from negative charge to positive charge. So this is the direction of the electric dipole moment. So that means electric field, resultant field और जो electric dipole moment है वो सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वांटिटी को अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में ये कैसा हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में होगा ये E is equal to 1/4 pi epsilon naught twice P by R cube। ठीक है, ट्वाइस P बाई R क्यूब। ओके, सो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन अलोंग एक्सियल लाइन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, और एक ऑब्जर्वेशन यहां पे देख लीजिए कि जो डाइपोल है, डाइपोल में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब मिल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए क्या था, पॉइंट चार्ज के लिए था E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, पॉइंट चार्ज के लिए E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, मतलब आप पॉइंट चार्ज से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है, और कैसे डिक्रीज होता है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। फॉर डाइपोल व्हेन यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द डाइपोल अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू डिक्रीज, बट यहाँ पे E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा फास्ट डिक्रीज होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस एट ए फास्ट रेट, faster rate in comparison to a point charge as you move away from a electric dipole। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब होता है डाइपोल के लिए। ठीक है, अलोंग एक्सियल लाइन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग इक्वेटोरियल लाइन। सो नेक्स्ट टॉपिक हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, सो यहाँ पे एक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट, और यहाँ पे पॉइंट O है, लोकेशन पॉइंट O, यहाँ पे हमको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो ये पॉइंट जो है दिस इज अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको नेगेटिव चार्ज से और पॉजिटिव चार्ज से ज्वाइन कर देते हैं। क्यों ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इट इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस लाइन में ही एक्ट करेगा, आइदर टुवर्ड्स द चार्ज और अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, अच्छा लेंथ ऑफ द डाइपोल ट्वाइस है, और जो C पॉइंट है वहां से O पॉइंट का डिस्टेंस है R। ठीक है, अच्छा तो ये अगर ट्वाइस है मतलब ये A होगा, ये भी A होगा, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये A है, ये R है, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर स्क्वायर रूट, मतलब ये डिस्टेंस इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर देखें निगेटिव चार्ज के लिए तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज के लिए हमेशा कहाँ होता है, टुवर्ड्स द चार्ज, तो दिस इज टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, सो ये हो गया आपका E माइनस क्यू। ठीक है, अच्छा सिमिलरली फॉर पॉजिटिव चार्ज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज, सो दिस इन दिस डायरेक्शन
अवे फ्रॉम द चार्ज। सो ई प्लस क्यू हो गया ये, ठीक है, दिस इज ई प्लस क्यू। ओके, सो नाउ ये जो ई प्लस क्यू है और ई माइनस क्यू है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। ई प्लस क्यू क्या होगा, इस चार्ज के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और ई माइनस क्यू क्या होगा, ई माइनस क्यू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, नेगेटिव चार्ज, वो कितना होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो आपको वहां पे चार्ज का साइन कंसीडर नहीं करना है। क्यों नहीं कंसीडर करना है, क्योंकि चार्ज का साइन तो आपने यहाँ पे डायरेक्शन में ऑलरेडी कंसीडर किया है ना। व्हाई द डायरेक्शन of this arrow is towards the charge because this charge is negative. Why the direction of this arrow is away from the charge because this charge is positive, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे डायरेक्शन ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे जब एक्सप्रेशन लिखेंगे वहाँ पे आपको चार्ज का साइन कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। ई प्लस क्यू एंड ई माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड सेम है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि ये जो एंगल ये थीटा है, यहाँ पे अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये एंगल थीटा होगा, ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये एंगल थीटा है, मतलब ये भी थीटा होगा। तो ये एंगल थीटा है, मतलब ई माइनस क्यू और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल थीटा है, ई प्लस क्यू और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। अब अगर हम उसको रिजॉल्व करें तो ई माइनस क्यू इधर है, ये थीटा है, तो ये कॉम्पोनेंट क्या होगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। और इधर क्या कॉम्पोनेंट होगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा, ठीक है। ई माइनस क्यू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। सिमिलरली ई प्लस क्यू के लिए क्या होगा, यहाँ पे जो ये थीटा है तो ये कॉम्पोनेंट हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और ये कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा। अब ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड सेम है, मगर क्या है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, खाली डायरेक्शन उल्टा है, तो इसका रिजल्टेंट तो जीरो होगा। मतलब हम लोग यहाँ लिखते हैं ई प्लस क्यू साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ई माइनस क्यू साइन थीटा। यहाँ माइनस क्यू लिखा है क्योंकि एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, तो इसको अगर मैं इस साइड ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा प्लस ई माइनस क्यू साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैंसिल हो गए, इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कैसे हैं, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन होगा तो क्या करेंगे, ऐड करना पड़ेगा, है कि नहीं। सो along horizontal direction हमको क्या मिल रहा है, along horizontal direction, along horizontal direction हमको क्या मिलेगा, E is equal to, ये दोनों E प्लस क्यू और E माइनस क्यू तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, ठीक है। तो हम लोग इसमें लिखते हैं E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। अब ये E माइनस क्यू को यहाँ पे मैं E प्लस क्यू लिख सकता हूँ क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही था, तो E क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू ये E प्लस क्यू कॉस थीटा और ये E प्लस क्यू कॉस थीटा, मतलब ट्वाइस E प्लस क्यू कॉस थीटा, ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग अगर सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज यहाँ पे, टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोगों ने क्या देखा था, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा इज बेस्ड बाय हाइपोटेन्यूज, ये पूरा चीज ट्वाइस है तो ये क्या होगा, ये चीज तो ए होगा, है कि नहीं। सो कॉस थीटा इज ए बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो q टाइम्स ये जो 2 है इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो q टाइम्स ट्वाइस क्या होगा, p होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ओके। सो दिस इज E इज इक्वल टू kp डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल 3/2, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 हो गया, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग E इज इक्वल टू kp। अब देखिए अगेन ये जो डाइपोल का लेंथ तो वो छोटा है एज कंपेयर टू r, तो मतलब जो ये r है ये a से बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैन बी रिप्लेस बाय आर स्क्वायर, सो आर स्क्वायर टू पावर 3/2 मतलब आर क्यूब हो जाएगा, सो दिस इज आर क्यूब। सो E इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/4πε0 P बाय आर क्यूब। मतलब along equatorial line also electric field intensity is inversely proportional to r cube. What is r? R is the distance from the dipole, ठीक है। सो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। व्हाट अबाउट डायरेक्शन, देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है,
सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ, रिजल्टेंट फील्ड किस तरफ आ रहा है? उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसका अंदर रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन वो डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट में आ रहा है। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस P बाई आर क्यूब। ठीक है, ये माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे E और P जो है दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, E P के ऑपोजिट में है। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, for both cases we have seen that electric field intensity is inversely proportional to r cube. So आप डायपोल से जब दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज जो होगा वो इट विल बी एट ए फास्टर रेट इन कंपैरिजन टू एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, अच्छा, तो अभी हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सियल लाइन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, अब अगर कोई जनरल लोकेशन अगर है तो जनरल लोकेशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अभी देखते हैं। तो अब यहां पे डायपोल ले लेते हैं, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। ठीक है, और तो ये सेंटर पॉइंट है और ये यहां पे एक लोकेशन है, दिस इज सेंटर पॉइंट, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सम लोकेशन सी। जो सी पॉइंट है ये ना एक्सियल लाइन में है ना इक्वेटोरियल लाइन में। ठीक है, अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, फॉर दिस डायपोल। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, थीटा हमारे पास गिवन। ठीक है, तो जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो तो इस तरफ हो गया P फॉर दिस डायपोल। डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो डायपोल मोमेंट को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये थीटा है। तो इसका मतलब ये कंपोनेंट क्या होगा? ये कंपोनेंट होगा P cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या होगा? ये कंपोनेंट होगा P sin थीटा। ठीक है, मतलब मैंने ये जो डायपोल है, डायपोल को हम लोगों ने जो डायपोल मोमेंट को मैंने रिजॉल्व किया है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट को मैंने रिजॉल्व किया है ये दो कंपोनेंट पे। तो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है तो हम लोग अभी मान सकते हैं कि ये जो डायपोल है इसको मैंने ब्रेक कर दिया है दो डायपोल में, एक डायपोल ये हो गया और एक डायपोल ये हो गया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो, ये जो पॉइंट सी है वो along the axial line of this dipole P cos theta। ठीक है, और एक्सियल लाइन में हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड along the direction of dipole moment होता है। ठीक है, तो मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए होगा? P cos theta के लिए होगा। ठीक है, along the axis, along the direction of the dipole moment। और ये जो P sin theta है उसके लिए ये तो पॉइंट क्या होगा? ये इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगा। तो इक्वेटोरियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने अभी देखा था कि इक्वेटोरियल लाइन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है। तो डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये EP sin थीटा, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P sin थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos थीटा। अब ये P cos थीटा P sin थीटा परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये दोनों कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फील्ड होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो ये आपका रिजल्टेंट फील्ड होगा, तो ये हमको निकालना है। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ। तो ये आपका हो गया रिजल्टेंट फील्ड। ठीक है, ये रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन, रिजल्टेंट फील्ड जो होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ये एंगल अल्फा है। ठीक है, मतलब अल्फा होगा ये रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ये रिजल्टेंट फील्ड का वैल्यू कितना है। तो ये निकालने के लिए हमको ये दोनों अलग अलग निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सियल लाइन EP cos थीटा, मतलब इसके एक्सियल लाइन में ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोगों ने अभी अभी किया था ना ये कैलकुलेट। तो A इंटू ट्वाइस P cos थीटा डिवाइड बाई आर क्यूब। एक्सियल लाइन में हम लोगों ने लिखा था ना K2P बाई आर क्यूब, और P क्या है? cos थीटा है। ठीक है, सिमिलरली EP इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस P sin थीटा, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू KP बाई आर क्यूब। ठीक है, P क्या है? P sin थीटा होगा, सो P sin थीटा डिवाइड बाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये तो इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ EP cos थीटा स्क्वायर प्लस EP sin थीटा स्क्वायर। करेक्ट? सो ये वैल्यूज अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो E इज इक्वल टू जो KP बाई आर क्यूब, इसको तो हम लोगों ने स्क्वायर रूट के बाहर निकाल दिया क्योंकि दोनों में ही आ रहा है, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है,
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल लोकेशन। ठीक है, जनरल लोकेशन का फॉर्मूला है, थीटा इज दिस एंगल। तो ये फाइनल रिजल्ट हमको मिल चुका है। ठीक है, और फाइनल रिजल्ट के बेसिस पे अगर हमको चेक करना है कि ये रिजल्ट सही है कि नहीं है, ठीक है, तो इसको चेक कैसे करेंगे, मतलब हम लोगों ने एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। ठीक है, सो एक्सियल लाइन में मतलब अगर है ये सी पॉइंट अगर इस साइड में होगा, ठीक है, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 0 डिग्री होगा, और अगर सी पॉइंट इस साइड होगा तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री होगा। मतलब अगर एक्सियल लाइन में है तो थीटा इक्वल टू या तो 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 0 मतलब एक्सियल लाइन में, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया, तो cos 0 कितना होता है 1 हो गया। सो ये 3 + 1 4, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना होगा 2, तो मतलब P का वैल्यू कितना आ जाएगा 2kp/r³। अब एक्सियल लाइन में तो ये रिजल्ट हमको मिला था। ठीक है, सिमिलरली अगर इक्वेटोरियल लाइन में है, सी पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन में है, ठीक है, तो इक्वेटोरियल लाइन में अगर होगा तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, cos 90 कितना हो जाएगा 0, तो 0 मतलब ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर रूट 1, सो मतलब E इक्वल टू कितना आ जाएगा, मतलब थीटा इक्वल टू मतलब 90 डिग्री है तो P इक्वल टू कितना है kp/r³। अब ये तो इक्वेटोरियल लाइन में होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये रिजल्ट हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ वेरिफिकेशन, बट ये फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, ये है जनरल लोकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। ये हो गया एक्सियल लाइन में और ये हो गया इक्वेटोरियल लाइन में। एक्सियल लाइन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वेटोरियल लाइन के मैग्नीट्यूड के 2 टाइम्स होगा, मतलब इसका 2 टाइम्स होगा। ठीक है, एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा, इक्वेटोरियल लाइन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, सो आज के वीडियो में इतना ही। माय बेस्ट विशेस, गुड लक।